The basic problem which student faces, they don't get the attention of the companies. Unless and until you're a techie, you understand how tech works, nobody's going to take your job unless you don't want to do it. उसके बाद we built ADC, Azure Developer Community, which is having 1.5 lakh of developers. सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जो कि आपको लगता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट को करनी चाहिए साथ साथ. फिर आते हैं B2B थिंग. द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इट इज देयर वाज अ गोल्ड रश इन US. दो चीज़ें होती हैं ना प्रोडक्ट में, इन द टर्म्स ऑफ अश्नीर ग्रोवर. एक प्रोडक्ट है, दूसरा धंधा है. आई वांटेड टू ऐड समथिंग ऑन दैट. मतलब कुछ सालों पहले कैलकुलेटर्स इन्वेंट हुआ था, राइट? हाउ मेनी इकोनॉमिस्ट और फाइनेंशियलिस्ट लॉस्ट देयर जॉब आफ्टर दैट? हेलो एवरीवन, हमारे साथ जुड़े हैं दो स्पीकर, एक सार्थक जैन और दूसरे दिव्यसोम पोहान. तो सबसे पहले सर आप दोनों एक अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दीजिए. Hi everyone, and my name is Hardik Jain. I'm the head of community at Reskill. तो मेरा बेसिकली काम है कम्युनिटी बिल्डिंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट, गिटहब, फॉर दीज ब्रांड्स. एंड या लव टू नो मोर अबाउट यू. Okay, I did not see the punctuation coming. Hello everyone, I am Dibyasum Pohan. I currently function as the co-founder and CTO at Comscaler, where we try to build cognitive solutions for all business communication. We are building it together. For the better part of last 2 to 3 years, I've worked at different startups like Calcul.ai, Kiddo, and MNCs like United Nations. So United Nations has this company called UNICC, which makes everything tech for UN. Then there's GitHub, Microsoft, Meta. But basically, my experience has been working mostly on the startups where you get a sense of ownership and a responsibility to actually build something out from your idea to actual product. So go way startups, right? And let's see what the podcast has for you today. तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि जो अब आपने ये रीस्किल कम्युनिटी डेवलप की, तो इसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या था स्टार्ट करने का? देखो यार, ऐसा सच कोई थॉट प्रोसेस तो नहीं था व्हेन वी हैव स्टार्टेड. हाँ, मतलब बेसिक थॉट प्रोसेस कुछ नहीं था. व्हेन वी हैव स्टार्टेड, द बेसिक प्रॉब्लम विच स्टूडेंट फेसेस, दे डोंट गेट द अटेंशन ऑफ द कंपनीज. हाउ? Like every companies wants कि they teach their product, their services, or what they have to these developers, young developers. We are just a bridge for both these entities. हम students को help करते हैं to identify the good resources. Like Microsoft का example लेते हैं. We help these students to upskill in Microsoft services, help them to get certification through Microsoft. तो ऐसा तो बेसिक आइडिया यही था कि मतलब स्टूडेंट्स की हेल्प करनी थी, कंपनीज की हेल्प करनी थी टू फाइंड गुड टैलेंट्स. एंड या इवेंचुअली अच्छा ही कर रहे हैं. एक दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जब आपने रीस्किल स्टार्ट किया था तो आपको लगता था कि आपके साथ 1 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे? देखो यार, रीस्किल जब स्टार्ट करा था ना, तो रीस्किल वॉज फाउंडेड बाय रोहित सरदाना एंड पुनीत जैन. हमारे 2 फाउंडर हैं, ठीक है. व्हेन दे हैव स्टार्टेड, दे हैव ऑलरेडी अ कंपनी. इससे पहले दे रन ऑलरेडी एन कंपनी जिसके पास 1 मिलियन डेवलपर्स थे, ठीक है. दे हैव डन लॉट्स ऑफ हैकाथॉन्स, ट्रेनिंग, अपस्किलिंग फॉर दीज डेवलपर्स. व्हेन वी हैड व्हेन आई वाज इन जॉइन रीस्किल एज एन हेड ऑफ कम्युनिटी, तो या उसके बाद वी बिल्ड ADC, Azure Developer Community, which is having 1.5 lakh of developers. And yeah, lots of expert. These developers are including experts, mentors, speakers. These developer includes young generations like you, young developers. So yeah, so we have that. दिव्यसम सर, जैसे कि आपका मैंने लिंक्डइन चेक किया था तो उस पर लिखा था कि आप सब कुछ कर सकते हैं. तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? So, as I said during my introduction, my better part of last 3 years has been at startups. So in startup, there is no specific KRA that is given to you, that no one will say that, hey, tomorrow morning you wake up and your only role is to make sure that this one API goes live. So there is no scope of work that limits you, or there is no barrier to you. So essentially, if you have an idea, you take complete ownership of it. From its ideation, you do the UML diagram, you plan out the journey, you create your own Jira tickets, you assign work to yourself, then you create its front end, back end, machine learning, any business logic required. So essentially, when you work in a startup, you wear a lot of hats. By that I mean you take a lot of responsibilities, and
I think that is a faster way to learn anything, and I think that is how most of the experience came to me, apart from the hackathons that I used to go before. So I think I hope that answers your question. जब आप रीस्किल को जब आप इंगेजमेंट के लिए लोगों तक पहुंचाने के लिए जब आप कर रहे थे कोशिश, तो आपने ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ किया था या फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को जिससे आप इतने लोगों तक पहुंच सकें? सी गाइस, मतलब देखो यार, होता क्या है कि हम सोचते हैं कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व होगी टू बिल्ड दिस होल इकोसिस्टम. द गुड पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी एंड द इज़ कि जब हम कम्युनिटी बिल्ड करते हैं ना, वी जस्ट नीड टू गिव समथिंग गुड टू द कम्युनिटी. वी गिव लॉट्स ऑफ इनिशिएटिव विद लॉट्स ऑफ ब्रांड्स, ठीक है, दीज MNCs. वी गिव knowledge of artificial intelligence, AR, DevOps. So we make students learn all these domains for free. Reskill का ना इनिशियल से एक स्टैंड रहा है फॉर स्टूडेंट्स कि वी डोंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम स्टूडेंट्स. वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग एंड वी आर नॉट थिंकिंग टू चार्ज इन फ्यूचर एज वेल. तो जस्ट एक ऐसा है कि यार कुछ सीखते हैं, आगे कुछ सिखाते हैं. वी हैव अ पूल ऑफ मोर देन 10,000 मेंटर्स जो इन 1 मिलियन डेवलपर्स को हर महीने हर साल कुछ ना कुछ नया सिखा रहे होते हैं. लाइक हम हैकाथॉन्स करते हैं, तो इन आवर हैकाथॉन्स, ब्यूटी ऑफ दी हैकाथॉन्स, वी डोंट चार्ज एनी अमाउंट फ्रॉम दी एनी रजिस्ट्रेशन अमाउंट फ्रॉम दीज स्टूडेंट्स. वी थिंक एक तो पहले से ही मतलब अपने एक्सपेंस पे वो ट्रैवल करेगा, आएगा, एंड देन उसके टॉप पे भी कुछ XYZ अमाउंट ले लेंगे. तो एज अ स्टूडेंट उसके लिए ना तो फीजिबल होगा और ना इकोनॉमिकल होगा, बिकॉज एज अ स्टूडेंट आई डिडंट गॉट मच फंड फ्रॉम माई होम, है ना, जिससे मैं अपने मतलब मंथली सर्वाइव कर लूँ. प्लस अगर उसके बाद भी ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए भी मुझे पैसे देने पड़ेंगे तो वो एक मोटिवेशन डाउन हो जाएगा एंड इवेंचुअली फिर मतलब कुछ नहीं करेंगे. तो दैट इज़ हाउ वी स्टार्टेड रीस्किल. वी गिव गुड कंटेंट, वी गेट गुड इनिशिएटिव्स टू कम्युनिटी, वी वर्क विद गुड ब्रांड्स एंड या. तो जैसे कि आपका जैसे स्टार्टअप्स जो होते हैं, तो स्टार्टअप्स का ऐसा क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए जो कि अगर किसी को स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो? There are 3 things to it, ठीक है. सबसे पहला, one, you should have an idea that actually adds value to the society. I mean, I'm saying this while I'm being the least philosophical, ठीक है. So एक honestly एक idea होना चाहिए. You should see a problem statement. Like the oldest example that goes is, there are 2 ways that you can do it. One, you should see a problem that is not yet solved. जैसे पहले water bottle was never packed. Someone thought, right, they can pack bottles and make money out of it. एक वो प्रॉब्लम है जहाँ आप डायरेक्टली सॉल्व करते हो. इट इज़ अ B2C प्रॉब्लम, राइट. योर आइडिया इज टू डायरेक्टली सर्व द क्लाइंट्स. फिर आता है एक B2B थिंग. द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इट इज़ देयर वाज अ गोल्ड रश इन US many hundred years ago, more than 100 years ago, there was a gold rush in US. So a lot of people rushed into US because they realized कि एक certain river के edge पे उस water में gold मिल रहा था. So people rushed into it. They started mining gold out of it. Now there was a person who thought कि I do not have the time and energy and effort to, because one, he was old, second, gold dig करना सबके बस की बात नहीं होती. It's a manual labor thing, right? So what he did was he realized people are working all day, working hard every day, and they have money. They don't even have, even if they don't have money, they have real gold. उसने उस रिवर के चारों तरफ होटल्स बना दी, बहुत लग्जूरियस होटल्स बनाई, and people started loving it because everyone wants rest after a bad rough day, and they have money and the wealth to power it. They just digged gold, right? So he saw a place where he can extract money as a bilateral. That is the gold rush example. 2 brands came out of it. JW Marriott, the first Marriott was built by that person around the gold rush. That is how the Marriott chain came. And Levi's, जो denim company है, it became famous after that because Levi's ने देखा कि denim, as comfortable as it is expensive. So they made the first brand of denim which is affordable and it is for rough and tough use. It's not for formal wear or party wear. So Levi's, all that gold rush people, all the people who used to go for gold, they started buying Levi's because one, it was affordable, second, चलता था वो.
So one, you should have an idea. Second, these are two kinds of ideas. You can serve the clients directly आप या फिर business के साथ bilaterals में on करो. Second आता है your idea. You should not be the only person who's excited by the idea. For example, if you come up with an idea, आपको वो हमेशा exciting करेगा. For you, it is the best thing in the world. जैसे मेरे अंदर 10 चीज़ें आती है और मैं सोचता हूँ मैंने तो दुनिया का सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए. मैं यूँ डेक्स्टर्स लैबोरेटरी, राइट. हाँ, बिकॉज वो प्रॉब्लम मेरे को फेस होता है, मुझे लगता है ये दिस इज सोल्यूशन, बट लोगों के लिए नहीं होता सोल्यूशन, राइट. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बिन वर्किंग ऑन अ रोबोट टू ट्रेन माई डॉग सिंस द लास्ट 3 months. And also to clean his poop and pee. Not that it matters, because I have to clean it. So that idea excites me because it reduces my work. People don't want it, but for me it is very exciting. But then we finally started working on this idea of ComScaler because we ran it through a lot of people. We ran it through industry experts, people with more than 18 to 20 years of experience in the industry, and it also excited them. So then we realized it has a market. Second, you should know some idea about what is the sustainability. So once you, दो चीज़ें होती हैं ना प्रोडक्ट में इन द टर्म्स ऑफ अश्नीर ग्रोवर. एक प्रोडक्ट है, दूसरा धंधा है. आपने प्रोडक्ट तो बना लिया, हाउ विल यू मेक इट सस्टेनेबल? यू नीड टू मेक मनी आउट ऑफ इट सो दैट वन यू कैन पे द सैलरी फॉर योर टीम एंड देन यू कैन कीप द प्रोडक्ट रनिंग. सो यू शुड नो हाउ टू रेज फंड्स, व्हाट आर द डिफरेंट ग्रांट्स, व्हाट आर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ दैट कैन एम्पावर योर स्टार्टअप. सो ये 3 चीज़ें होती हैं. एक आइडिया होना चाहिए आपके पास, दूसरा एक आइडिया का वैलिडेशन होना चाहिए, एंड देन इट शुड बी सस्टेनेबल और बेसिकली द बिजनेस मॉडल. आई थिंक फॉर मी, इन माई ओपिनियन, दोज आर द 3 things I wanted to share. क्या आप लोग बता सकते हैं, आप लोगों ने आज MSIT में स्पीकर सेशन किया, आप लोगों ने अभी तक कितने स्पीकर सेशन कर लिए होंगे पूरे टोटल अभी तक आप दोनों ने? मतलब ऐसा कोई काउंट तो नहीं है. व्हेन वी स्टार्टेड तो ये सोचा था कि एक स्पीकर डायरेक्टरी बनाएंगे, लिखेंगे कि व्हेन वी हैव डन द सेशन, कौन सा सेशन कहाँ पे करा, किस चीज़ से बोला, एंड देन ड्राइव जहाँ पे सब फोटोज़ वगैरह अपलोड करेंगे. बट सॉरी, ऐसा हो नहीं पाया आफ्टर 2 or 3 सेशंस. बट या रफली 200 से ज़्यादा सेशन कर लिए होंगे. ये प्लानिंग ना उतना ही अच्छा गया जैसे हम हर सेमेस्टर से पहले सोचते हैं ना अगले सेमेस्टर पढ़ाई करेंगे स्टार्टिंग से. हाँ, मतलब कुछ ऐसे ही हुआ है. तो 200 से ज़्यादा सेशन करे हैं, 100-150 से ज़्यादा कॉलेजेस गए हैं, उनसे समझा है. मतलब उनसे ये नहीं समझाया, उनको यही नहीं बताया कि टेक क्या होता है. ऐसा नहीं था, कोई ट्रेनिंग दी है, बस उनकी प्रॉब्लम भी बहुत सारी देखी है. जैसे कि हमारे काफ़ी सारे फ्रेशर्स भी देख रहे होंगे इस पॉडकास्ट को, तो सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा क्वेश्चन होता है फ्रेशर का जब आप किसी से मीट करते हो तो जो आपसे सबसे ज़्यादा पूछा गया हो? देखो यार, इसमें ना 2 क्वेश्चंस होते हैं. 2 तरीके के फ्रेशर देखने को मिलता है. एक फ्रेशर होता है जो प्रैक्टिकली जिसे थोड़ा सा पता होता है, वो प्रैक्टिकल होता है. लाइक एक फ्रेशर होता है जो पूछता है कि भैया कोडिंग नहीं हो रही है, पहला ये आ रहा है DSA कैसे करूँ, कोडिंग कैसे करूँ. दूसरा फ्रेशर होता है कि जो अभी आया ही है, ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट कोडिंग. उसे ये नहीं पता व्हाट इज़ कोडिंग, होना ना होना दैट इज सेकंड पॉइंट ऑफ कॉन्वर्जेशन. बट अभी तक वो उस मीत में जी रहा है. जैसे आपने बहुत सारे लोगों की स्टोरी सुनी होगी, द डे दे एंटर इन द कैंपस. आपके कैंपस में भी यू विल सी बिग बोर्ड्स, है ना, जहाँ पे लिखा हुआ है 1.7 करोड़ प्लेसमेंट, 1.2 करोड़ प्लेसमेंट, 1.3 करोड़ प्लेसमेंट. और आप उसको देख के इंस्पायर हुए, आपने कहा अब तो जाना गूगल में है, अब तो जाना माइक्रोसॉफ्ट में है. तो एक वो वाला प्रेशर होता है कि वहाँ कैसे जाए. तो 2 क्वेश्चन होता है कि हाउ टू बी इन फैन कंपनीज, और अब तो फैन फेसबुक मेटा हो गया, तो मैन कंपनीज. और दूसरा क्वेश्चन ये रहता है हाउ टू लर्न DSA. जैसे कि अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहा है सबका कि AI/ML ChatGPT आने के बाद सारी जॉब्स जो हैं वो चली जाएंगी. इस पे आप दोनों का क्या कहना है? मतलब मेरा तो ये स्टेक है कि नहीं जाएगी. और जैसे ChatGPT भी है, अगर आपको उससे एक फ्लटर का ऐप डेवलप कराना है, सपोज़ मुझे फ्लटर नहीं आता है, अब मुझे फ्लटर का ऐप डेवलप कराना है, फर्स्ट थिंग इज़ कि मुझे फ्लटर सीखना पड़ेगा, बिकॉज वो कोड तो लिख के दे देगा. अब ना तो मुझे कोड को रन करना आता है, ना कोड को डीबग करना आता है, ना कोड को मॉडिफाई करना आता है. तो आई शुड नो ऑल दीज 3 थिंग्स. तीसरी बात यह है कि मतलब नहीं, फॉर मी AI विल नॉट टेक ओवर द वर्ड अनटिल अनलेस यू आर नॉट दैट मच डम्प. जो आप मतलब कुछ करोगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा. वो तो AI नहीं तो ये ले लेगा जॉब. I wanted to add something on that. कुछ सालों पहले कैलकुलेटर्स इन्वेंट हुआ था, राइट? हाउ मेनी इकोनॉमिस्ट और फाइनेंशियलिस्ट लॉस्ट देयर जॉब आफ्टर दैट?
कोई नहीं, right? Nothing, no one. So because it's a tool. At the end of the day, it is the tool, and someone only who is good in that domain can use it. So you need someone who is good in the domain of application development. अगर आपको app development के लिए ChatGPT use करना है, because it is even today it is not at that point it can understand the entire it can understand the tech behind it. It can never understand the business problem that you're trying to solve. बहुत complex होता है, बहुत byzantine होता है, and ChatGPT is today not yet at that level, and not soon enough it will be at that level जहाँ पे वही problem solve कर सके. The reason being, it's at the end of the day a language model, right? आप मल्टीपल डोमेन्स की अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ एप्लीकेशन जो आपके लिए लेट्स से क्रिप्टो करेंसीज प्रेडिक्ट करता है, देर आर सो मेनी कॉम्प्लेक्सिटीज रिक्वायर्ड एंड देर आर सो मेनी पीपल हु आर एक्सपीरियंस्ड इन डिफरेंट डोमेन जिनकी एक्सपर्टीज चाहिए. तब सिर्फ टेक इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता. यू नीड समवन हु इज एक्सपीरियंस इन क्रिप्टो ट्रेडिंग जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट से होती है. तो कुछ चीज़ें सिर्फ ChatGPT कैन हेल्प यू विद द probably understand your code better, debug your code faster. It should be looked up to as a tool. But like there is a proverb, right? Not a proverb, it's a saying ki you fire a chef from a hotel and they will still cook somewhere else. So unless and until you're a techie, you understand how tech works, nobody's going to take your job unless you don't want to do it. So I think that's how it goes. It's a tool at the end of the day. जैसे कि आप MSIT में आए, तो आपको MSIT की ऑडियंस कैसी लगी, लाइक कॉलेज कैसा लगा आपको, मतलब, और ऐसी क्या चीज़ें लगती है आपको कि MSIT में आपको ये चीज़ चेंज चाहिए या फिर ये चीज़ अच्छी हो सकती है जो कि MSIT के बच्चों के लिए अच्छी चीज़ है वो? देखो यार, ऐसा कुछ चेंज तो नहीं है, बिकॉज कॉलेज में आए हुए ऑलमोस्ट 4-5 घंटे हुए, तो इतना ज़्यादा ऑब्ज़र्व नहीं करा है. बाकी जितनी चीज़ें ऑब्ज़र्व करी, ऑडियंस पढ़ना चाहती है, दे आर enthusiast. First year, second year was very enthusiastic. They want to learn something. They have ample amount of doubts which we try to solve जितना टाइम मिला. At the end of the day, हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है. देखो, द फ़र्क पता है क्या आता है? फ़र्क आता है कल्चर में. आपके फर्स्ट ईयर में ना हर एक कॉलेज में सेम स्टूडेंट आता है. अगर आपके कॉलेज में MSIT में है तो वो भी उसी टेंडेंसी, उसी मार्केट से, उसी कॉलोनी से आया है जिसमें दूसरे कॉलेज का बच्चा जा रहा है ना. सेम एरिया से, सेम हो सकता है आपके कॉलेज से भी दिल्ली से बच्चे आते हो, नोएडा से आते हो, और भी कॉलेजेस में सेम लोकेशन से, लोकेलिटी से जाते हो. चेंज होता है कल्चर में जो कि कॉलेज के अंदर होता है. अब कम्युनिटी कल्चर हो गया है ना, तो बस यही है कि अगर यहाँ पे कम्युनिटी कल्चर स्ट्रॉन्ग है, एलुमनाई नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, तो स्टूडेंट विल गेट दी एडवांटेज जो कि आई गेस लोगों को, बच्चों को मिल भी रहा है. तो या बिल्ड करते रहो, टेक सीखते रहो, पढ़ते रहो, और कम्युनिटी को छोड़ो मत, कंट्रीब्यूट करते रहो. जितना आता है, जितना देखा है, जितना समझ आता है, उतना कंट्रीब्यूट कर दो. बिकॉज इवेंचुअली द डे यू कंट्रीब्यूट, द डे यू लर्न, मेक एनीवन लर्न न्यू थिंग्स, आप एक चीज़ फालतू सीख के जाओगे वहीं से. लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि ऐसी कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, जैसे सब कोडिंग कर लेंगे, DSA कर लेंगे, वो तो हमें करनी है, हम BTech या टेक के बंदे हैं, लेकिन ऐसी कौन सी सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जो कि आपको लगता है एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को करनी चाहिए साथ साथ? I mean, basically tech तो होना चाहिए, obviously, right? I mean, when I say tech, I don't mean coding. Not everyone has to be an like amazing coder. There are lots of so many different requirements in the tech industry that not everyone codes. I mean, coding has always been an execution level thing. It's not a planning, right? It's like once you know what you want, anyone can code that. That is why we have ChatGPT. That is why I said ChatGPT cannot make product. It can help you with the tech part. So now we have ChatGPT. Tomorrow we probably might have something else. So coding is always the execution level thing. What our company definitely looks out of a developer is one, domain knowledge. That is a soft skill that is very underrated. Normally हम being outspoken, स्पीकिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, इन चीज़ को सॉफ्ट स्किल्स में गिनते हैं. बट डोमेन नॉलेज इज़ अ वेरी अंडररेटेड soft skill. For example, if you are working in, let's say, the Netflix team for the streaming platform जहाँ से show stream होती है, if you don't know, if you're a person who is not even interested in watching a web series, or you're not a person who ever used Netflix, you don't see the bigger picture कि आज जो तुम बना रहे हो, how is it effective 6 months from today.
So that domain knowledge is very important to take a decision that actually adds value to the product. फिर presentation skill, आपकी soft skills. I mean, there are two types of developer, right? One who always sit in the basement and code. There is nothing wrong about it. And second, who can actually spearhead the team. Management, managing the work. Tech में you will realize eventually that along with skills, there is something more important: how trustworthy you are. Like if something goes down, how quickly can you bring it back? Or if you set a deadline, how solid people can actually believe on you that you'll deliver on that deadline. तो उसके लिए सबसे important हो जाता है time management. प्रायोरिटी सेट करना कि अगर 3 चीज़ें हैं ऐसी कौन सी, हाउ डू यू डेलीगेट द वर्क इन अ वे दैट यू डिलीवर द वर्क ऑन डेडलाइन. तो वर्क डेलीगेशन, being trustworthy, delivering the products on time, time management, team management, leadership skills. ये along the way as you keep rising the ladder in the tech industry, you'll realize that all of these things are even sometimes more important than your skills eventually. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड बहुत मज़ा आया आप लोगों से बात करके और काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला होगा लोगों को. लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आप लोगों से लिंक्डइन से किसी को कनेक्ट करना है तो वो कैसे कर सकता है? ऐसा क्या मैसेज करे कि आप उसका लिंक्डइन एक्सेप्ट कर लो? देखो यार, इनविटेशन तो वी एक्सेप्ट कर लेते हैं, नहीं भी करते तो मैसेज आ जाते हैं. मतलब ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं बना रखा है या कोई एल्गोरिदम नहीं है जो हमें मैसेज करोगे हम रिप्लाई कर देंगे उसी मैसेज पे. बट हाँ, वील ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल. सारे मैसेजेस का रिप्लाई कर देते हैं, ठीक है. वो तो कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. बट हाँ, अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है और वहाँ पे लिख दो, मेल कर दो, बिकॉज इन आवर कंपनी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें मेल का रिप्लाई करना. तो अगर आपका मेल आया तो हम 110% रिप्लाई करेंगे, है ना. मतलब वी फिक्स दैट. हाँ, फॉर हिम. हाँ, या यार तूने अपना नाम गीत कृष्णा बोला था, राइट? गीति कृष्णा एंड योर आकाश. तो बस टेक्स्ट कर देना गीति कृष्णा और आकाश का सिस्टम है, हम लोग कनेक्ट कर लेंगे. एक दिन कि आकाश कुमार ने बोला था, मैंने यूट्यूब पे देखा था आकाश कुमार को, आपका चैट सेशन देता था पॉडकास्ट, ये एक्सेप्ट कर लेंगे, दोनों एक्सेप्ट कर लेंगे, सिस्टम हो जाएगा. बहुत मज़ा आया आप लोगों से बात करके. पूरी ब्रॉडकास्ट टीम को आपके साथ वर्क करके बहुत ही अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर द इनवाइट. थैंक यू.